education sector are all provided in that. And second is the RP series. So that is slightly on the premium side, which has some premium features, and that segment is little bit more expensive, little bit more priced when we compare it with the RM series. So these are the two models, RM series and the RP series. So apart from that, in this session, there will be a new model of RM series, the RM02K series, which will be coming maybe after 2 months. So I'll also brief you about that product once we are through with the RM series and RP series. So we'll start the session now. So first we will start with our RM series, which we mostly focus for the education sector. So talking about the sizes, what we have on the RM series. So these are the two sizes, the four sizes. So just let me use a pen. And so these are the sizes: 55, 65, 75, and 86. So these are the four sizes, the in terms of diagonal. And we talk about the panel. So this is how the image what you see is of our interactive flat panel. So normally how they look, how is the build and the quality. So at the bottom of all these panels, you will see this standard all BenQ interactive flat panels. They have their speakers at the bottom. So at the bottom, there is this complete speaker bar. So total of 40 watts of speakers, that is 20 watt cross 2 speakers are there. Yeah, sufficient enough for a teaching scenario or a classroom scenario. All right, and these panels have a tempered glass, 4 mm of tempered glass with 7 MOHS scale. 7H is the hardness. Apart from that, the all the panels have infrared technology, the complete interactive flat panel, which we will be discussing today. And little bit more about the panel. So along with the panel, there will be two stylus. So stylus will look like this. So one is little bit thin on the tip and another is thick on the tip. So why these are made like this is because of the dual pen technology which is available on the panel. So we have a dual pen facility on the panel, wherein at the same time, if you want to write with two different colors, you can do that through the stylus. So the touch area which is coming in contact of the panel, that is the technology how it works. So thin represents one color and thick represents another color. And apart from that, this is a closer look of the speaker bar. And in the front, there are two buttons, and at the between them is the IR sensor. So this is for menu and this is for power. And above this speaker bar there is a curved pen tray. So this tray is little bit curved for keeping the stylus or anything which is quite handy like a pen on the panel, so that can be kept. And as these are infrared technology, instead of stylus, if you want to, if you have to use your fingers, that can also work, or any opaque object can be used on the surface of the panel. All right. So that was the hardware brief. Now, talking little bit about what uniqueness BenQ has. So what all BenQ has created on their own. So there are certain technologies which BenQ has worked upon. So we have a complete team. So in first of that list is the low blue light technology. So on the panel, when we see, so फ्रॉम अवर चाइल्डहुड, वो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि वो टीवी जो है अपने को दूर से देखनी चाहिए, नहीं तो क्या आंखें खराब हो जाती है, राइट? वी हैव बीन हियरिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. वो होता क्या है कि जैसे कि अभी आप यहाँ इमेज में देखोगे, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है? तो ये जो है इतना एरिया, जितने कलर्स आपकी आंखें देख सकती है, तो उसमें से जो आपका 420 टू 455 नैनोमीटर्स का जो वेवलेंथ होता है, ये क्या होता है? ये आपकी आईज के लिए हार्मफुल होता है, राइट? तो जब हम लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मतलब 420 से 455 वाला जो वेवलेंथ है वो आपका ब्लॉक हो रहा है,
तो इतना हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। सो आप अगर ये जो एक इमेज है यहाँ पे, इसमें देखोगे लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है, दैट इज़ आपका नॉर्मल, ठीक है? जिसमें पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है। राइट साइड में हल्का-सा जो है ब्लू लाइट थोड़ा-सा डिम हुआ है। क्योंकि आपको समझना होगा, क्योंकि ये इंटरैक्टिव पैनल्स हैं। आप जो है इन पैनल्स को बहुत नज़दीक से यूज़ करोगे। अगर ये उसी इंटेंसिटी से लाइट देंगे जैसे आपकी टीवीज़ में आती है या अदर कमर्शियल डिस्प्लेज़ में जो आप देखते हो, तो आपकी आँखों पे जो है काफ़ी असर पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी तो क्या है कि आप बेटर कर सकते हो, बट आँखें एक बार खराब हो गई तो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट? सो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल यूज़ करते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी जो है बेंक्यू की लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी, ये टीयूवी सर्टिफाइड है। सो टीयूवी एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मन टीयूवी रेनलैंड। सो दिस कंपनी इज बेस्ट टू सर्टिफाई सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है? सो जो भी चीज टेक्नोलॉजी हम बताते हैं या कि हमारे पास है, तो यू विल ऑलवेज नोटिस कि बेंक्यू ऑलवेज ऑफर्स अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। क्योंकि आप जब भी, अब जैसे हमने जो भी क्वालिफिकेशन किया है, कहीं भी बाहर जाते हैं और किसी भी टर्म में, लाइक पासपोर्ट के लिए या फिर जॉब के लिए, तो उसमें हर जगह आपसे प्रूफ मांगा जाता है कि ठीक है आपने ये क्वालिफिकेशन किया है तो आपको डिग्री या मार्कशीट तो होगी। तो उसी टाइप से बैंकिंग के जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, अगर उनका इफ अगर सर्टिफिकेशन प्रोसेस पॉसिबल है, देन वी विल ऑलवेज हैव दैट, ठीक है? सो ये था आपका लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी एंड ये है उसका सर्टिफिकेट। एंड इसके अलावा एक और चीज जो आपकी आंखों पे फर्क डालती है वो है फ्लिकर्स। सो अगर आप नॉर्मल एक ट्रेडिशनल टीवी को कैमरे के थ्रू देखोगे, तो आप फील करोगे, यू विल ऑब्जर्व कि उसमें जो है फ्लिकर्स आ रहे हैं, राइट? तो आप फील करोगे कि उस पे जो फ्लिकर्स है। सो पैनल्स पे आपको फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी, अगर आप कैमरे से अगर देखोगे तो वो फ्लिकर्स आपको विजिबल नहीं होंगे। अगेन ये एक दूसरा पैरामीटर था, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जो कि आपका आईज के लिए अगेन स्ट्रेस और स्ट्रेन कॉज करता है, ठीक है? अगेन इसका भी हमारे पास टीयूवी सर्टिफिकेट है जो कि इसके साथ अटैच्ड है। एंड थर्ड आता है आपका एंटी ग्लेयर कोटिंग। एंटी ग्लेयर कोटिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दे आर हैविंग एंटी ग्लेयर स्क्रीन, बट इसका जो वैल्यू आता है वहां पे, जहां पे जब इसकी परसेंटेज की हम बात करते हैं। सो इस पे जो है एंटी ग्लेयर जो सरफेस है हमारा, दैट इज 88%। सो 88% ऑफ द लाइट जो पड़ती है स्क्रीन के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सो पहले तो मैं बताऊं अगर आपको कि एंटी ग्लेयर की जरूरत कहाँ पड़ती है। अब मान लो आप इसको एजुकेशन में किसी एजुकेशन सिनेरियो में लगाते हो, तो वहां पे हर जगह खिड़की और दरवाजे तो ओपन रहते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है कि बाहर से जो लाइट आती है, अगर आप नॉर्मल टीवी लगाते हो तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स क्लास में, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो रिफ्लेक्शन उनके उसकी वजह से कुछ टेक्स्ट जो है जो लिखे हुए हैं वो क्लियरली नहीं देख पा रहे क्योंकि वहां से शाइन आ रही है, राइट? तो इसीलिए जितने भी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स होते हैं उनमें एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है कि जितनी भी लाइट हो आप स्टिल वो चीजें पढ़ सकें। क्योंकि एम्बिएंट लाइट में कई बार होगा कि एक्सटर्नल लाइट का बहुत इन्वॉल्वमेंट है उस केस में, तो इसलिए आप जो है फिर ये एंटी ग्लेयर कोटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इस केस में। सो आप इमेज में भी देखोगे तो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है ये आपका एंटी ग्लेयर है और राइट साइड वाला रिफ्लेक्शन है। सो अगर जैसे रूम के अंदर अगर सीलिंग पे भी लाइट्स वगैरह है तो उनका भी इम्पैक्ट जो है पड़ता है, किस तरीके से ये जो आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, राइट? यही रिफ्लेक्शन जो है आपका लेफ्ट साइड वाला डिस्प्ले जो कि एंटी ग्लेयर है उस पे वो चीज नहीं आ रही है। ऑलराइट, सो ये तीन चीजें जो हैं ये आई केयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई थिंक कोई भी अगर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज करने जा रहा है तो सबसे पहले उन चीजों को उसे कंसिडर करना चाहिए। ऑलराइट, सो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि पैनल में इनबिल्ट क्या है। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं बताऊं जितने भी BenQ के पैनल्स हैं उसमें आपको इनबिल्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, ठीक है? सो अपना खुद का कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड है सारे पैनल्स के ऊपर।
क्योंकि ये एंड्रॉयड है तो आप अपने एप्लीकेशंस भी उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। हर एक एप्लीकेशन की गारंटी बैंक्यू नहीं दे सकता, बट एप्लीकेशंस आप लोग टेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द मॉडल सब पे एंड्रॉयड वर्ज़न अलग-अलग रहता है। सो ये जो आरएम सीरीज़ है इसमें एंड्रॉयड वर्ज़न 5.1 है, जो आरपी है उसमें एंड्रॉयड वर्ज़न 6.0 है और जो हमारी नई सीरीज़ आएगी उसमें एंड्रॉयड जो है 8.0 ओरियो रहेगा। ठीक है? तो क्योंकि ये एंड्रॉयड है, सबसे बड़ा एडवांटेज थर्ड पार्टी ऐप्स का तो आपको मिल जाता है, तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? सो उसके अलावा देयर आर सेट ऑफ एप्लीकेशंस जो हम लोग बैंक्यू प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है? तो उन एप्लीकेशंस को हम लोग एक-एक करके अभी देखेंगे, जो यूनिक एप्लीकेशन है, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें इमेज में आप फ़ोटो में देख पा रहे हो, ये मेन्यू ऑप्शंस हैं। तो आप पैनल पे या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कहीं से भी स्वैप करोगे तो ये आपको मेन्यू ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका इनपुट सिग्नल, तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4 4 एचडीएमआई, 1 ओपीएस स्लॉट और 1 वीजीए पोर्ट आपको मिल जाता है। अगला है पिक्चर सेटिंग, जिसमें कि आप आई केयर मोड वगैरह और पिक्चर सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद के जो 3 आइकन्स हैं, ये आप समझ लो वही आइकन्स हैं जो आप एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हो। होम पे जाना मतलब मेन स्क्रीन पे, बैक का बटन और ये आपका रनिंग एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना हो या क्लोज़ करना हो एप्लीकेशन, तो ये वो वाला ऑप्शन है। ऑलराइट? उसके बाद फिर आपका आ जाता है ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन, तो इससे आप वॉल्यूम कंट्रोल, स्क्रीन कैप्चर, ब्राइटनेस कंट्रोल और व्हाइट बोर्ड इन सब पे आप जा सकते हो। देन अगले 2 ऑप्शंस ये हमने स्पेसिफिकली टीचिंग पर्पज़ से बनाए हैं। एक है फ्रीज़, कभी भी स्क्रीन को फ्रीज़ करना हो तो आप इससे फ्रीज़ कर सकते हैं। अगला है आपका ब्लैंक। सो ब्लैंक में क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राइट? अब आप किसी भी सेशन में पढ़ा रहे हैं और सेशन के में आपने बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद आप चाहते हो कि जो भी अब सारे बच्चों का अटेंशन जो है बोर्ड से हट के अब वो आपके ऊपर आ जाए, ठीक है? क्योंकि आप उन्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट समझाना चाह रहे हैं। होता है कई बार या पढ़ाते समय टीचर्स पूरे क्लास का अटेंशन आपके ऊपर चाहते हैं। ठीक है? तो उस केस में अगर आप ब्लैंक वाला ऑप्शन ये दबा देते हो, तो पूरी स्क्रीन जो कि लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। मतलब स्क्रीन ऑफ नहीं होगी बट ऑफ जैसी दिखेगी आपको। बट पीछे की जो बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन चल रहा था, वो एप्लीकेशन बंद नहीं हुई होगी। आप दोबारा टैप करोगे तो वो दोबारा आ जाएगी। सो ये जो है ब्लैंक ऑप्शन हो जाता है आपका। कभी भी इस बच्चों का अटेंशन आपको अपने ऊपर लेके आना है स्टूडेंट्स के टीचर्स के ऊपर, तो उस केस में आप ये ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये तो था मेन्यू के जो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और जो आप ये देख रहे हो ये होम स्क्रीन है। सो इस पे आपका ब्राउज़र होता है इनबिल्ट इंटरनेट सर्फिंग के लिए। डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस है, अगर आपको कोई वर्ड, पीपीटी, एक्सेल फाइल खोलनी है, पीडीएफ फाइल खोलनी है, तो वो डायरेक्टली आप पैनल के ऊपर ही खोल सकते हो। आपको अलग से सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। फ़ोल्डर्स में जाने के लिए ईएस एक्सप्लोरर है। इसमें इनबिल्ट मेमोरी जो है वो आपका 32 जीबी का है। बेंक्यू सजेस्ट पे अभी हम बात करेंगे, ये आपका जैसे ऐप रिपॉज़िटरी है बेंक्यू की, एंड देन लोकल एप्लीकेशंस में आपको सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी जो भी है। उसके अलावा जैसे नॉर्मल जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं जैसे इनबिल्ट मीडिया प्लेयर और आपका अ, इमेज व्यूअर और ऑडियो प्लेयर, तो ये सारी चीज़ें जो है इनबिल्ट है पैनल में, इसके लिए तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा पैनल पे कुछ एप्लीकेशंस बेंक्यू ने डेवलप किए हैं। सो ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं बेंक्यू की टीम ने ही डेवलप किए हैं, दे आर रेगुलरली उसको जो है हम लोग इम्प्रूव भी करते रहते हैं, राइट? सो ये सबसे पहला है आपका राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं इज़ेड राइट 4.1 लाइट, जो कि हमारे पूरी आरएम सीरीज़ के ऊपर होता है। सो सबसे पहले इसमें देखोगे ये तो आपका फ्री स्टाइल राइटिंग के लिए हो गया रेगुलर पेन, ठीक है? तो यहाँ से आप जो है थिकनेस कम और ज़्यादा कर सकते हो, ये जो लाइन दिख रही है, और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन है आपका डुअल पेन का। डुअल पेन में आपने देखा था कि जो स्टार्टिंग में हमने 2 टाइप के स्टाइलस थे अपने, थिकनेस उनकी अलग थी टिप की। तो डुअल पेन में ऐसे ही आपकी टेक्नोलॉजी काम करेगी। तो एक पेन से जैसे थिन वाला जो स्टाइलस है यहाँ पे आप देखोगे तो उससे ब्लैक सेलेक्टेड है। जो सर्कल व्हाइट कलर का है, वो आप देखोगे कि थिन पतला है दूसरे वाले से।
ऑलराइट, सो ये वाला हो गया थिक स्टाइलस। तो ये इसी तरीके से जो है ये टेक्नोलॉजी भी काम करती है। तो एक ही बार में आप 2 डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा है आपका ब्रश मोड। सो ब्रश मोड में क्या होता है कि आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कई बार होती है ना एक्टिविटी वाली क्लासेस जिसमें आप पेंटिंग भी करते हैं स्कूल में, तो उस केस में आपके जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं, वो भी आपके डिटेक्ट होते हैं पैनल के ऊपर। जितने भी ब्रश ब्रश के स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, वो सारे आपके इसके ऊपर डिटेक्ट होते हैं। ऑलराइट, और इरेज़ करने के लिए यहाँ पे बहुत ईज़ी है हमारे पैनल पे, जैसे कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपको अपने हाथ रखना है और आपके पाम से जो है आपका पाम इरेज़र बन जाता है। ठीक है? सो जस्ट आपको पाम रखना है, जितना बड़ा आपका सरफेस कॉन्टैक्ट पे है पाम का, उतना ही बड़ा आपका इरेज़र एक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा आप नीचे इरेज़र वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जितना पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे, उतना डिलीट करने का ऑप्शन हो जाता है। सो आप जितना पोर्शन सेलेक्ट करोगे, सिर्फ़ उतना ही डिलीट होगा। सो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव इरेज़िंग। उसके बाद अपने पास इज़ेड राइट पे जो है टूल बॉक्स का ऑप्शन है। तो टूल बॉक्स पे जो है आपका कई सारे टूल्स हैं जो बेंक्यू ने प्रोवाइड किए हैं। जैसे सबसे पहला तो हो गया उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या है कि आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिखना है 2 + 2 = 2। तो ये ऑटोमैटिकली आपको जो है पैनल वो कैलकुलेट करके दे देगा आंसर, और वो होगा एक्चुअल फॉर्म में। ठीक है? तो ये जो कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज्ड है। इसको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सो टाइम के साथ-साथ आपकी राइटिंग देखते-देखते ये और इम्प्रूव होता रहता है अपने आप। ठीक है? तो ये आपका पहला हो गया। उसके अलावा इसमें स्कोर बोर्ड है, तो अगर आप अलग-अलग टीम्स के बीच में एक्टिविटी करते हो, तो वो स्कोर बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास टाइमर है, स्टॉपवॉच है, लकी ड्रॉ है, एंड उसमें आपका हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन है। हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, अगर मैं यहाँ पे अपने हाथ से पेन से लिखता हूँ, अगर आप हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन मोड में हैं, तो और उसके बाद मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ या फिर हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन मोड में हो, तो ऑटोमैटिकली इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन। हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन में आपके वर्ड्स, आपके नंबर्स और ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रिकॉग्नाइज़ होती हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन मोड। तो ये सारे टूल्स जो हैं आपके टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा फिर है अपने पास इम्पोर्ट टूल। इस पे अगर आप चाहो कि कुछ इमेज इम्पोर्ट करनी है, जैसे कि अ प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बारे में दिखाना है तो गैलेक्सी का आपने वो जो है इमेज यहाँ अपलोड कर दिया, पीरियोडिक टेबल अपलोड कर लिया, या फिर आप कह लो कि आपको ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बताने हैं, तो वो आपने इफ इमेज इंपोर्ट कर ली हो तो, और उसके ऊपर जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ये इंपोर्ट का ऑप्शन है। ये 2 ऑप्शन तो अनडू एंड रीडू के हैं, यहाँ से न्यू पेज ऐड करने का है, और अप टू 15 पेजेस तक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो जब आपका सेशन या क्लास खत्म हो जाती है, तब उसको सेव करने का जो ऑप्शन होता है, वहाँ से यहाँ से आप सेव कर सकते हो इमेज या फिर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। सो ये 2 फॉर्मेट्स हैं जिसमें कि आप सेव कर सकते हो। उसके अलावा अब आती है शेयरिंग की बारी। जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, लोगों के पास अपने खुद के आईपैड्स होते हैं। ठीक है? तो लोगों के खुद के आईपैड, टैबलेट्स होते हैं, तो वो अगर उसी टाइम अगर उनके उसमें इंटरनेट है, तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। सो ये है आपका शेयरिंग वाला आइकन। शेयर से क्या होगा, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। उस क्यूआर कोड हमारे क्लाउड के ऊपर, उस क्यूआर कोड को जो भी स्कैन करेगा, वो फाइल उसके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है? सो ये जो है शेयरिंग वाला ऑप्शन है, सभी के साथ इंस्टेंटली शेयर करने के लिए वाया क्यूआर कोड सब लोग फाइल को इंस्टेंटली डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? सो ये था हमारा इज़ेड राइट सॉफ्टवेयर, एंड इसका इंटरफेस बहुत ही ईज़ी है समझने के लिए। नीचे आप देखोगे बहुत ही बेसिक और जो नॉर्मल कॉमन आइकन्स हम यूज़ करते हैं, उन्हीं आइकन्स को लेके यूज़र इंटरफेस बनाया है, सो दैट अ लेमैन कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि किसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है? इसके बाद अगले उस पे चलते हैं। सो ये है बेंक्यू सजेस्ट। बेंक्यू सजेस्ट होता है आपका ऐप रिपोजिटरी। सो बेंक्यू की ऐप रिपोजिटरी, जैसे आपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में देखा होगा प्ले स्टोर।
उसी तरीके से ऐप आईफोन डिवाइसेस में है ऐप स्टोर। सिमिलरली जितने भी BenQ के पैनल्स हैं उन पे आपको मिलेगा BenQ सजेस्ट। सो BenQ सजेस्ट पे हम लोग रेगुलरली एप्लीकेशंस टेस्ट कर करके उस पे अपलोड कर सकते हैं। आप जब चाहें तब पैनल को इंटरनेट से कनेक्ट करके इनमें से कोई सा भी ऐप अगर नहीं है पैनल पे तो इंस्टॉल कर सकते हैं पैनल के मेमोरी पे। ऑलराइट, सो दिस इज ऐप रिपोजिटरी ऑफ BenQ। ये हम लोग अपडेट करते रहेंगे क्योंकि इसमें कुछ एप्लीकेशंस हमारी हैं और कुछ जो है ज्यादातर जो है जैसे किसी पार्टनर से हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं तो उनसे टाई अप करके फिर वो एप्लीकेशंस को यहाँ पे हम लोग टेस्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। सो सबसे पहले तो एजुकेशन में अप टू 7th ग्रेड हमने केविन ब्रैडफोर्ड के एप्स डाले हुए हैं। फिर आपका बिंगो फॉर किड्स है, मैथ्स ट्यूटर है, सीसो है, सो और WPS ऑफिस है। सो ये सारी चीजें जो है आपकी इनबिल्ट पैनल पे होती हैं। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने कॉर्पोरेट किया है, बट जूम भी आप डायरेक्टली पैनल से यूज कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग के लिए। एंड ब्लिस भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जूम में तो भी आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड लगता है या फिर ज्वाइन करना होता है, बट ब्लिस में आपको वो भी नहीं लगता। ब्लिस में आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो एंड ब्लिस इज फॉर अप टू 5 पार्टिसिपेंट्स, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके अलावा इस पे मैकएफे है। सो मैकएफे एंटीवायरस है, सिक्योरिटी पैरामीटर्स के हिसाब से जो भी आप सिक्योरिटी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। एंड ये फिर है आपका क्विक सपोर्ट। सो अगर आपको रिमोटली कुछ सिस्टम पे चेक करना हो पैनल के ऊपर, तो आप टीम व्यूवर यूज करके पैनल का एक्सेस अपने ऊपर अपने सिस्टम पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो कि एडिशनली आप BenQ सजेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दोज विच आर ऑलरेडी देयर ऑन द पैनल। उसके अलावा जो मैंने अभी तक बताए हैं वो तो बाय डिफॉल्ट है, इनको भी आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, BenQ सजेस्ट के बाद अपना अगला टूल है फ्लोटिंग टूल। तो आपने EZ राइट हमारा राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर तो देखा। अब राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर के अलावा अ, अब मान लो आप सॉफ्टवेयर से बाहर हो, कहीं पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो या कहीं पे आप विंडोज ये OPS पे हो या फिर मैकबुक पे हो, आपने HDMI से लगाया हुआ है, VGA से लगाया हुआ है, या फिर मान लो आपने एंड्रॉयड पे ही USB से कोई वीडियो फाइल रन की है। तो ऐसे किसी भी केस में जब भी आपको लगे कि अब मुझे आई फील लाइक एनोटेटिंग, आपको लगे कि एनोटेशन करना है आपको, तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग टूल का यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग टूल एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट 2 फिंगर्स पैनल के ऊपर रखनी होती है। आपने 2 फिंगर पैनल पे रखी, थोड़ा सा गैप रखिएगा दोनों फिंगर्स के बीच में हल्का सा। ठीक है, तो ये गैप रखते ही आपका फ्लोटिंग टूल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये रखा, ये आपका फ्लोटिंग टूल इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। 2 सेकंड में जो है आपका 2 से 2.5 सेकंड में ये टूल आपका ऑटोमेटिकली पैनल पे एक्टिवेट हो जाएगा विद इन 2 सेकंड्स। सो नीचे जैसे आप इमेजेस में देखोगे ये मैक पे भी आ सकता है, ये विंडोज पे भी आ सकता है और ये इनबिल्ट एंड्रॉइड पे भी आ सकता है। सो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये पैनल पे सरफेस के ऊपर EZ राइट के अलावा, क्योंकि ये तो EZ राइट का पार्ट ही है, उसके अलावा इसको आप इस टूल को कहीं पे भी पैनल के सरफेस पे ला सकते हो। जस्ट 2 फिंगर प्रेस करने की जरूरत है। ये समझ लो आपकी अलादीन के चिराग जैसा है। तो आपने जैसे ही 2 फिंगर रखी तो आपके पास ये फ्लोटिंग टूल आ जाता है। आप इसको यूज करिए, एनोटेट करिए। तो इसमें भी ऑप्शंस हैं आपके, ये डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन है, ये आपका स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट कहाँ सेव हुआ उसका ऑप्शन है, फोल्डर में जाने का। वैसे यहाँ पाम इरेजर यहाँ भी चलेगा, बट आप इरेज ऑल भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपको अगर राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली यहाँ से जाना हो, और ये तो आपका कलर्स के लिए है ही, तो इसमें से आप डुअल पेन वाला फंक्शनैलिटी यहाँ भी आपका चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्लोटिंग टूल, इजी एक्सेस टूल पैनल के सरफेस के लिए जब भी आपको चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आ जाता है, स्पेशली जब हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जहां पे हमने 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हमने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल दिए हैं। ठीक है,
तो ये है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डीएमएस। सो डीएमएस क्या है? BenQ का खुद का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सो ये सॉफ्टवेयर जो है आपका पैनल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। सो डीएमएस जो सॉफ्टवेयर है, इससे आप BenQ के पैनल्स को ओवर द लैन या ओवर द इंटरनेट कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? क्या-क्या कर सकते हैं इसमें कंट्रोल? सबसे पहले तो इसमें हम लोग कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स। तो जो भी आपकी पिक्चर सेटिंग्स हो गए, ब्राइटनेस लेवल और वॉल्यूम लेवल का कंट्रोल हो गया, इनपुट सोर्स चेंज करना है रिमोटली और पिक्चर सेटिंग्स चेंज करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डिस्प्ले सेटिंग के थ्रू हो जाएँगी। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्ले सेटिंग एक। उसके अलावा इसमें अगला ऑप्शन है इंस्टॉल ऐप्स का। इंस्टॉल ऐप्स में मतलब अब क्योंकि ये एंड्रॉइड है और हमने इसको कस्टमाइज्ड एंड्रॉइड बनाया, मतलब आप इसको इस पे ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो थर्ड पार्टी, क्योंकि हमने जैसे BenQ की ऐप रिपोजिटरी दी, आप खुद अपनी ऐप रिपोजिटरी बना सकते हो और उनको टेस्ट कर करके अपने अकाउंट पे, डीएमएस के अकाउंट पे लॉगिन करके उन पे अपलोड करते रहिए। सो अब मान लो किसी स्कूल में अब उन्हें यूट्यूब का ऐप यूज करना है फ्रीक्वेंटली, या उनके खुद के लाइब्रेरी के ऐप्स हैं, या ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन है, ठीक है? तो अब अगर आपको वो एक ऐप मान लो एक स्कूल में है, 50 पैनल लगे हैं। अब एक ऐप ने आपने टेस्ट कर लिया आरएम सीरीज पे, अब वो सभी पे इंस्टॉल करना हो तो एक आपको पूरा 1 से 2 दिन लग जाएगा हर एक पैनल पे जाके ऑन करके इंस्टॉल करने में। उसके अलावा आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली ही आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। ठीक है? आप अपने ऐप रिपोजिटरी पे उसको अपलोड कर लीजिए और वहाँ से आप डायरेक्टली ये डीएमएस का ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं हर एक पैनल के ऊपर सेंट्रली। ठीक है? सो ये आई थिंक ये यूनिक फीचर्स में से एक है BenQ का। कोई भी अदर मैन्युफैक्चरर इतना सारा डिटेल्स आपको नहीं देगा कि ये थर्ड पार्टी ऐप्स का भी पुश करने का और इंस्टॉल करने का। सो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ओवर द क्लाउड आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा जो है वो आपका ओटीए। ओटीए मतलब ओवर द एयर अपडेट, जो कि आजकल काफ़ी डिस्प्लेज़ में कॉमन हो चुका है। सो आप को अगर पैनल अपडेट करना है या कोई एप्लीकेशन अपडेट करनी है, तो एडिशनली सर्विस का पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पैनल पे इंटरनेट है, तो आप डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट, ओवर द एयर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका ओटीए। देन अगला है ग्रुप मैनेजमेंट, डिवाइस ग्रुप मैनेजमेंट। मतलब अब मान लीजिए एक किसी वो जो स्कूल था जिसमें 50 पैनल लगे हुए हैं, उसमें डेली शाम को मान लो 1 डेढ़ बजे स्कूल खत्म हो जाता है, तो आप किसी किसी क्लासेस में हो सकता है कि टीचर ने पैनल ऑफ ना किया हो। तो आप यहाँ से एक साथ सारे पैनल्स को ग्रुप ऑफ कमांड भी दे सकते हो। सारे पैनल्स को जो है एक साथ कमांड चली जाएगी स्विच ऑफ की, तो सारे के सारे पैनल जो हैं वो एक साथ ऑफ हो जाएँगे। तो ये ग्रुप जो हमने डिस्प्ले सेटिंग्स जितनी भी होती हैं, इनको आप डिस्प्ले सेटिंग को ग्रुप में भी कर सकते हो। एक का सेटिंग एक साथ कर सकते हो या अदरवाइज़ 50 को भी एक साथ एक ही कमांड दे सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिंगल है और ये आपका मल्टीपल का है। ठीक है? और इसमें कई बार गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना कि आपने वो गवर्नमेंट माँगती है कि पैनल यूज़ भी हुए हैं कि नहीं, कितने घंटे यूज़ हुआ, वो सब निकल सकता है कि नहीं। डीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारी चीज़ें भी आपकी निकल सकती हैं कि कितने घंटे ये पैनल यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का जो है रिकॉर्ड रखता है डीएमएस सॉफ्टवेयर। ठीक है? ये आपका समझ लीजिए एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम जब भी डेमो देने जाते हैं, तो सबसे पहला जो है डेमो आपका हम लोग किसको देते हैं? सबसे पहले आईटी वाले जो अप्रूव करने वाले होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है उन्हीं को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि यूज़र विल हार्डली नो कि ये सब क्या है। ये उन क्योंकि उन्हें कभी मैनेज नहीं करना पड़ेगा ये चीज़। बट आईटी टीम को अगर आप ये चीज़ें बताओगे, तो आई थिंक दे वुड बी द बेस्ट पर्सन हू कैन अंडरस्टैंड कि इसका कितना यूज़ रह हो सकता है, कितना यूज़फुल रहेगा ये टूल। ठीक है? ये तो था डीएमएस सॉफ्टवेयर एंड इसके बाद अगला सॉफ्टवेयर है BenQ का, इसको हम बोलते हैं एक्साइन कंटेंट मैनेजमेंट एंड मल्टी डिवाइस कंट्रोल।
सो एक्साइन ब्रॉडकास्ट इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं, और एक लेमन के लिए बताऊं तो ये समझ लो कि आप पीए सिस्टम है ये आईएफपी के ऊपर, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। अब मान लो वही स्कूल जिसमें आपके 50 पैनल लगे हुए हैं, अब उस 50 पैनल पे आपको कुछ मैसेज भेजना हो उन्हीं 50 क्लासरूम्स में। आपको जैसे कोई एक्टिविटी है, स्कूल के बाद अर्जेंट आ गई, अब आपको जो है सभी क्लासरूम से मैसेज देना है कि एवरीवन असेंबल इन द असेंबली हॉल एट सो एंड सो टाइम आफ्टर दिस पीरियड, और after the school everyone, all teachers are means told to come into the classroom. So ऐसा अगर कुछ भी नोटिस रहेगा, so that notice can be published over the internet on all these panels. So एक अकाउंट जो है आईटी वाला अकाउंट है, उसमें ये सारे, जब एक बार आपको इस डिवाइस आईडी जो होती है वो हर एक पैनल की यूनिक होती है, उसके थ्रू आपको ये पैनल लिंक करने होते हैं। एक बार लिंक हो गए तो फिर आपको अगली बार से सिर्फ कंटेंट ही पुश करना है। सो अब मान लो ये तो हो गया टेक्स्ट फॉर्मेट। अब आपका रिसेंटली कोई एनुअल फंक्शन हुआ, अब वो एनुअल फंक्शन में जैसे लंच ब्रेक का टाइम खाली होता है, तो अब एनुअल फंक्शन है स्कूल में, तो एक्टिविटीज चलती रहती है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या जो भी फंक्शंस हम लोग करते हैं, होली दिवाली वाले, सो उनके इमेजेस हैं आपके पास। तो आप वो इमेजेस भी सेंट्रली जो है हर एक पैनल पे रन कर सकते हो। यहाँ पे पूरा शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, ये किस टाइम पे कितने बजे किस डेट पे ये कंटेंट चलना चाहिए वो आप शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया। उसके अलावा आप इस पे वीडियोस भी भेज सकते हो। जैसे आपके पास कोई वीडियो पड़ा हुआ है प्रिंसिपल की स्पीच का, या कोई प्रेयर का इन दी मॉर्निंग कि सभी क्लास में रन हो जाए, या फिर मोटिवेशनल स्पीच, या फिर आपका कोई लाइव कास्टिंग हो रही है यूट्यूब पे, तो ये सारी चीजें जो है वीडियोस आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो पैनल्स के ऊपर, सेम इसी शेड्यूलिंग के तरीके से। सो आपने 7 बजे अगर कोई वीडियो प्ले करने के लिए डाला और 7:05 पे वो खत्म हो, या फिर आपने लिखा कि एक बार प्ले होने के बाद ये वीडियो बंद हो जाए, तो वैसा ही होगा। सो ये शेड्यूलिंग भी जो है ये पैनल पे अवेलेबल है। तो एक्साइन ब्रॉडकास्ट जो है ये हमारा बेंक्यू का खुद का डिजाइन टूल है एक्साइन का। सो एक्साइन इज बेंक्यू प्रोप्राइटरी सोल्यूशन जो हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन में भी यूज करते हैं। सो ये जो है पहले अपना चार्जेबल बेसिस पे था। सो अभी रिसेंटली लास्ट 2 महीने पहले अभी हमने इसको फ्री ऑफ चार्ज किया है फॉर एवरीवन, ऑल द यूजर्स, आरएम सीरीज के लिए, आरएम एंड आरपी आईएफपी सीरीज के लिए। सो अब जो है ये फ्रीली आप इसको यूज कर सकते हैं। करंट मॉडल्स जो अभी ऑलरेडी अगर आपने कहीं इंस्टॉल भी किए हो तो उनपे भी ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका एक्साइन कंटेंट मैनेजमेंट जो वाला टूल है। उसके अलावा इसके बाद एक और टूल आता है बेंक्यू का जिसको हम बोलते हैं इंस्टा शेयर। सो इंस्टा शेयर है आपका टू वे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो इसमें क्या होता है, आपका टू वे कम्युनिकेशन मतलब आप अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप डायरेक्टली पैनल के ऊपर मिरर कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो हो गया वन वे, आपने मिरर कर दिया। बट व्हेन आई से टू वे का मतलब आप पैनल का मिरर भी अपने मोबाइल के ऊपर ले सकते हो। टू वे है, अपना मोबाइल भी मिरर कर सकते हो, पैनल का मिरर भी अपने उस पे ले सकते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है कि आजकल डिजिटल कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है। आप मोबाइल से डेटा दिखाना चाहते हो, हायर स्कूल्स में देखोगे, कॉलेजेस में तो वहां पे लोगों के पास टैबलेट्स भी होते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन उस समय बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट टूल है। सो अभी रिसेंट जो हमने अपग्रेड्स किए हैं उसमें हमने 4 स्क्रीन स्प्लिट का भी ऑप्शन दिया है, और फुल स्क्रीन तो ऑलरेडी था ही, बट हमने इसको बाइफरकेट कर दिया है इस बार। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी सेटिंग्स हैं। आप नॉमेनक्लेचर यहाँ नाम दे सकते हो हर एक क्लास का। ये कनेक्ट कोड है, सो अगर आपको मिरर करना हो तो कनेक्ट कोड एनेबल कर सकते हो, तो जो कनेक्ट कोड डालेगा वही मिरर कर पाएगा। फिर आपका जो है अगला टूल आ जाता है इसमें कनेक्ट विंडो वाला। सो ये विंडो मतलब ऊपर दिखने लगेगी। देन बाकी सारे कंट्रोल्स अगर देने हैं आपको तो ये उसके ऑप्शंस हैं।
ऑलराइट। उसके बाद अभी जो रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं सॉफ्टवेयर में, सो वो हैं आपके सबसे पहले तो 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन एंड 4 स्क्रीन स्प्लिट वाला ऑप्शन। सो ये रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स में है। उसके बाद नंबर ऑफ कनेक्शंस, पहले क्या था, आपको लिस्ट नहीं मिलती थी कि कौन कौन से यूजर्स जो हैं आपके कनेक्टेड है। आपको सब सिर्फ इतना पता है कि हाँ होपफुली लोग कनेक्टेड हैं, बट लिस्ट नहीं मिलती थी। बट इस बार आपको लिस्ट भी मिलेगी कि हु ऑल आर द यूजर्स जो कि आपके कनेक्टेड हैं। ठीक है। सो इसमें आपका एक और हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल्स बढ़ा दिए हैं, जो कि कंट्रोल एंड नॉन कंट्रोलिंग ऑफ मिरर डिवाइस। सो कंट्रोलिंग एंड अनकंट्रोलिंग में होता क्या है कि जैसे आपका डिवाइस अभी आपने मिरर किया है, ठीक है, और उसके बाद जैसे किसी ने आईएफपी का मिरर भी ले लिया, ठीक है। अब आईएफपी मिरर लेने के बाद कई बार होता है ना कि अनइंटेंशनली भी लोग कुछ यूज करने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, या फिर इंटेंशनली भी कर सकते हैं। सो उस केस में हमने यहाँ पे ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका अनकंट्रोल्ड रहेगा, मतलब सामने वाले को कंट्रोल नहीं मिलेगा। ओनली इफ द पर्सन इफ ही विशेस कि हाँ उसको ये कंट्रोल मिल जाए, तब आपको जो है आप उसको जो है कंट्रोल ऑप्शन भी दे सकते हो। उस केस में वो स्क्रीन पे अपने सीट पे बैठे बैठे अपने मोबाइल या टैबलेट से पैनल के ऊपर एनोटेशंस कर सकता है। उसके लिए आपको एनेबल करना होगा जस्ट एक बार टैप करके। सो ये अगेन ये जो चीजें हैं, ये कनेक्शन लिस्ट देना और ये सारे कंट्रोल्स देना, ये अगेन क्योंकि ये बेंक्यू का ही सॉफ्टवेयर है, बेंक्यू का ही सोल्यूशन है, तो ये अगेन सिर्फ बेंक्यू ही इस सोल्यूशन को अभी प्रोवाइड कर रहा है। नो वन इन द इंडस्ट्री इज एबल टू गिव यू द लिस्ट एंड उसका कंट्रोल। जो मिरर कर रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, एनेबल डिसेबल कर सकते हो, स्क्रीन से हटा सकते हो या स्क्रीन पे ला सकते हो। अगर वो यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे इस लेवल तक का जो है इम्प्रूवमेंट्स हम लोगों ने किया है इंस्टा शेयर एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। तो ये तो हमारे थे सारे सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि एप्लीकेबल हैं आरएम सीरीज के ऊपर। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलेंगे। उससे पहले आपको कोई क्वेश्चंस तो प्लीज आप लोग पूछिए, एनी क्वेश्चंस? Yes, I have one question. यस प्लीज। This is Sunny from Sharptech AV Designs. My या। question is this: that you are saying that you can do casting. Casting means both way. We can share the interactive panel screen to the tablets or to the PC. Exactly, I'm correct. यस। So, how many person can take the screen of interactive panels to their laptop or to their PC to their tablets? So we suggest up to 16, and why we suggest up to 16 is because of the network capability. अगर आपके पास better network है, if you are having a better network, जिसमें क्योंकि आप every person will take around 1 Mbps of bandwidth of your network, right? So अगर आपके पास bandwidth है उतना तो you can go up to 20 30, नो प्रॉब्लम। बट हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड होता है वो 16 है, क्योंकि आइडियली ये हम मान के चलें अगर पुराना सेटअप भी है तो 16 तो चलेंगे ही चलेंगे। And for that, you will be all on the same network, or you can be on the other network also. No issue for that. सेम नेटवर्क चाहिए उसके लिए। इफ दैट इज ऑन वीपीएन वी ऑल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ऑन वीपीएन आल्सो इट विल वर्क, बट नेटवर्क शुड बी सेम लैन, इट्स नॉट ओवर द इंटरनेट, इट्स ऑन द सेम लैन। Okay. यस। And one more question is there. प्लीज। While doing a mirroring of your laptop to the interactive panel, can we get the touchback activity over there? Absolutely. From the Windows and Mac operating systems, you get the touchback option. That is by default there. Is there any cable we have to attach that touch cable we have to attach, or it can be wirelessly? No cable attachment is required. It's completely wireless. And how many person at a single time can show their screen to the panel? Like, can we have a quad view for the 4 person to the interactive panel at a single time? Yes. Yes, we can have. Okay, then can we have uh, uh, can all that 4 person are standing over there, and let's say 2 person are standing over there, they can Mhm. simultaneously touch back when doing the wireless presentation over there. You understand what I'm asking? Yes, I got your point.
2% they can do it, but if suppose there are two screens like this, and Yeah. normally the screen is in 16:9, that means it will come only in this portion, right? So you are getting only this much portion on the screen. After that it becomes so small that you are also not able to use that properly. That's the challenge which comes while using. Okay. So we recommend that if you are using the touch, then let's have one screen at a time, because it becomes difficult for the users to use it because icons become so small. One more question is there. When we are Yeah, using the operating system of Android or like Apple, so yeah. can we get the touchback for that thing also? Like mobile phone से भी touchback मिलेगा अपने को? नहीं, मोबाइल फोन का टचबैक इन एंड्रॉयड से ही नहीं मिलेगा। वो एंड्रॉयड का लिमिटेशन है, वो हमारे पैनल का नहीं। वो एंड्रॉयड और आईओएस जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, इन्होंने ये एज अ सिक्योरिटी पैरामीटर अलाउ नहीं किया है कि मिररिंग में टच आपका चले। Okay, that is cool. Super. Yeah, Thank you. yeah. Okay, thank you. Any further questions, anyone, please? So Gaurav, we have got close to 100 participants on this call. Yeah, I it's think you have houseful. house full, and I think truly appreciate everybody joining the call. Um, Gaurav has told many interesting things, and we believe the best learning is like there was a friend asking some questions right now. While one of you is asking, I'm sure like the attention span of all the others is a lot better because the monotony is broken. If I'm talking over a period in time, you will get bored with me and then you are switched off. So let's switch everybody on in this call. You can start, you can just name who you are and tell us. Till now there are at least 15 things, 15 things which Gaurav has mentioned about interactive flat panels of BenQ, which are either unique to BenQ or which are exemplary technology offerings of BenQ. Let's see how many of these you have been able to capture. So one person, one technology, unless there is a complete silence, and this person who knows more than one is going to be welcome to start sharing. And Amit Gupta, you can open your line and possibly you can tell us about who that person could be if in case you wish to ask